सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰਮ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ? ਦ ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਸਮ ਆਫ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਪਲੇਨਰ ਕੰਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ is equal to resolved part of their resultant in that direction। ਕੰਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਪਲੇਨਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਪਲੇਨ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੋਰਡ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ 'ਚ ਨੇ ਕੋਪਲੇਨਰ। ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਉਹਦਾ ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਸਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੰਸੈਪਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, A B C D E F is a regular hexagon. Find the resultant of forces equal to 7, 8, 5, 9, 19 kilogram weight acting respectively along AB, CA, AD, AE, AF। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਗਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਰ ਅਤੇ ਥੀਟਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਪਾ ਲਿਓ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਸੈਪਟਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੈਕਸਾਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈਵਿੰਗ 6 ਸਾਈਡ, ਜਿਸ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀਆਂ 6 ਸਾਈਡਾਂ ਹੋਣ। ਪੋਲੀਗਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ। ਜੋ ਹੈਕਸਾਗਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਹੈਕਸਾਗਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ A B C D E F। ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਡ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, 6 ਦੀਆਂ 6 ਸਾਈਡਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਡ ਪਾਇਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 120 120 120 120 120। ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ
इदां ज्वाइन कर लिया, फिर इदां ज्वाइन कर लिया, इदां ज्वाइन कर लिया, आ ज्वाइन कर लिया सारा। मतलब कि फिर एक एंगल के 4 हिस्से बन गए, एक आ हिस्सा, एक आ हिस्सा, एक आ हिस्सा, एक आ हिस्सा, ये तिन्ने हिस्से बराबर होंगे ने। ये भी 30 का एंगल बनेगा जी, ये भी 30 का एंगल बनेगा, ये भी 30 का एंगल बनेगा, ये भी 30 का एंगल बनेगा। एक तो कंसैप्ट हो गया। 120 एंगल होगा, साइडां सारियां बराबर होणगियां। जे एक एंगल तो सारे आपां इहनूं डायगनल्स कहने आपां, डायगनल्स तीन बन गए डायगनल, डायगनल AC AD AE ज्वाइन कर लिया, एंगल 4 बन गए ओवरऑल। ये चारे एंगल जोड़े होंगे 30 30 30 डिग्री होंगे। जे आप ए साइड ए मान लीए, ए भी साइड ए मान लीए, जी आ वाली साइड होंगी है AD, ये 2A होंगी है। ये 2A साइड होंगी लेंथ की। तो जिथे एक डायग्राम होर बना रहा, ये औखा हो जाएगा। एक आह डायगनल, एक आह डायगनल, एक आह डायगनल, ये तीन एक पॉइंट से मीट करनगे। इनू कहांगे आपां ये सेंटर ऑफ हैक्सागन आ, सेंटर ऑफ हैक्सागन। ये साइड जे ए हैगी आ तो सारी ए भी हरेक लेंथ ए भी 2A होएगी जी, आ भी 2A होएगी, आ भी 2A होएगी। ये क्यों हो गया थोड़ा होमवर्क आ, तुसीं कर लियो। बाकी मैं हिंट दस देना हैगा, वो हिंट देख लियो की हैगा। जिमें ए हो गया, ये सारे कंसैप्ट पिछे नाल दे ने, छोटी क्लास के कंसैप्ट ने। साइडां सारियां बराबर होंदियां ने। ये देख के लग रहा होगा कि ये पैरेललोग्राम बन गया जी। पैरेललोग्राम दे विच ओपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंदियां ने, फिर ए भी ए होगी, सामने वाली इक्वल होएगी। हुण ये ए आ तो आ भी ए होगी। जे ये ए आ भी उपर वाला भी पैरेललोग्राम आ, देखो पैरेललोग्राम। जे ए साइड ए आ तो आ भी ए होएगी। तो नीचे देख लो, आप बनानी है ना ए, आ पैरेललोग्राम आ, देखो देख के लग रहा होगा लाइनस पैरेलल ने, साइड्स पैरेलल ने। तो जे ए लेंथ ए है तो आ भी पक्का की होगी ए होगी। जे ए भी ए होगी तो टोटल लेंथ कितनी बन गई थी 2A बन गई। आ ए होगी, आ लेंथ 2A ध्यान रखनी है। तीजी गल आ लेंथ भी हम कटनी है अपने, आह डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। ये थोड़ा कट के दिखा रहा है, तुहानूं ध्यान च रहूगा, याद भी रह जाऊगा नाले कि यह डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। यह डायगोनल की लेंथ जी होंगी आपस इक्वल होंगी है। हूँ ये कढ़नी किमें वो कढ़ रहे हैं आप, तुहानूं याद भी रह जाऊगा किमें कढ़नी होंगी है। ये सारे कंसैप्ट जो छोटी क्लास के कंसैप्ट ने कि कढ़नी किमें अपने इदा ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तुम ध्यान च रहूगा। डायग्राम साफ जी बना ली है। साइड बराबर करनी है। आ लेंथ बराबर ने दोनों, आप आ लेंथ लभनी है। सिर्फ आह पार्ट ड्रॉ किया ABC वाला। ये लेंथ कितनी है ए। हम देखो आ लेंथ किमें कट रहे हैं आपने आ लेंथ कट रहे कि आ लेंथ कितनी बनूगी। तो देखो ध्यान दो तरीके ने करा दे। इतों परपेंडिकुलर ड्रॉ करता आपने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। दो तरीके किमें करें जी। मान लो ये ए है, ये एंगल 30 है कितना आप हूँ। ये एंगल कितना होगा जी फिर 60। कि आप आह लेंथ कट सकते कितनी आऊगी
BCD ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कि आह लैंथ निकल सारे कितनी आऊगी आ निकल जाए चाहे आ निकल जी मर्जी निकल जाए ये कट सकते हैं CD भी कट सकते हैं CD अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोटन्यूज ये होंदा हैगा साइन 60 साइन 60 होंदा √3/2 तो CD कितनी आ गई अपने को ए की वैल्यू कितनी है BC कितना मन्ने अपने ए उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता √3/2 ए तो आ गई अपनी CD ये ट्रायंगल की लिया सी आपां इन ट्रायंगल BCD ये पिछली जोमैट्री है सारी हुण कटनी आपां ACC हुण लो ट्रायंगल ACD जे ACD ट्रायंगल लवांगे लभनी की अपने AC उपर रख लो कड्डी की हुई है अपने CD कड्डी हुई है ये देखो की बनूगा हुण हाईपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये कोसीकेंट होंदा जी कोसीकेंट 30 कोसीकेंट 30 कितना हो गया 2 साइन 30 हाफ होंदा उल्टा किया 2 बन जाएगा तो AC 2 इंटू CD कितना कढ़िया अपने √3/2 A तो AC कितनी होगी √3A ये प्रूफ वैसे सीधा याद रखना अपने ये प्रूफ तो करवाया है जे बाई चांस भुल जाओ असीं मौके पर बना सकते हैं तो रैगूलर हैक्सागन दे विच अपने कोल ओवरऑल 5 गल्लां हो गई पहली गल सारियां साइडां इक्वल दूजी गल सारे एंगल इक्वल 120 डिग्री हो गए तीजी गल जे आपां डायगनल्स बनावांगे 3 तो हरेक एंगल 30 30 30 30 होगा चौथी गल जेड़ा आ डायगनल जोड़ांगे आपां वड्डे वाला ये लेंथ 2A होगी जो छोटे वाला डायगनल होगा जी पंजवीं गल जो छोटे वाला डायगनल होगा वो लेंथ कितनी होगी √3A होगी ये बराबर होंगे लेंथ दोनों दी ये दोनों की लेंथ बराबर होगी ये अपने ओवरऑल ये कंसैप्ट सीगे तो तुहानूं दसना ही चलो मैं कह रहा 2 प्रूफ करने ने आपां ये भी देख रही है चलो एक प्रूफ तो हो गया एक प्रूफ होर सौखा आ प्रूफ सौखा प्रूफ की है इतों देख के लग ही रहा होगा कि एंगल 90 है 90 किवें आ वो देख लो ये 30 है ये 60 है 120 सी ना ओवरऑल ये 60 हो जूगा अद्धा करके 60 आ जाऊगा 30 60 ट्रायंगल के तीजा एंगल की होगा पक्का 90 जे 90 आ लेंथ कितनी A आह कितनी 2A तो आ किवें कड्डांगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये की है ये परपेंडिकुलर ला लो जिहड़ा परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर हुंदा वो कितना हुंदा जी हाईपोटेन्यूज स्केयर हुंदा परपेंडिकुलर का स्केयर कटना आपां ने बेस कितना अपने कोल जी A स्केयर हाईपोटेन्यूज कितनी अपने कोल 2A का होल स्केयर 4A स्केयर माइनस A स्केयर 3A स्केयर P कितना आ गया √3A ये सौखा हो गया थोड़ा औखा हो गया तो दोनों गल्लां तुहानूं आउणियां चाहिए ने दोनों गल्लां तुहानूं आउणियां चाहिए ने तो ओवरऑल ये कंसैप्ट ने यही कंसैप्ट यूज़ करके आपां फिर न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं आपां वो देखो स्टेटमेंट आपां पढ़ी सीगी तो लिखी होनी मैं दोबारा बोल नहीं रहा सीधा डायग्राम बना रहा वो डायग्राम देखो जी डायग्राम खुली जी बनानी हैगी जिन्नी डायग्राम वधिया बनावांगे उन्ना क्लीयर होगा आपां नूं रेगुलर हैक्सा सारे साइड बराबर ने तो हरेक एंगल कितना 120 है हरेक एंगल 120 है दिता की होया सी आपां नूं ए बी दे अलॉन्ग जिहड़ी फोर्स लग रही हैगी आ
ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 7। ਚਲੋ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਐਫ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਏ ਬੀ ਲੌਂਗ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਟ, ਮਤਲਬ ਏ ਬੀ ਲੌਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 7। ਅਲੌਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਅਲੌਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ 7 ਦੀ ਏ ਬੀ ਦੇ ਅਲੌਂਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ 7 ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ, ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਲੈਂਥ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਈਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਸੀ ਏ ਦੇ ਲੌਂਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 18। ਸੀ ਏ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੀ ਏ ਅਲੌਂਗ ਸੀ ਏ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ 18 ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਰਸ। ਏ ਡੀ ਦੇ ਅਲੌਂਗ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 5। ਏ ਡੀ ਦੇ ਅਲੌਂਗ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ 5। ਏ ਈ ਦੇ ਅਲੌਂਗ ਹੈਗੀ ਆ 9। ਏ ਈ ਦੇ ਅਲੌਂਗ ਹੈਗੀ ਆ 9। ਅੱਗੇ ਏ ਐਫ ਦੇ ਅਲੌਂਗ ਹੈਗੀ ਆ 19 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੀਟਾ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਉਣਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਮੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲਓ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਆਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਥੀਟਾ ਬਣਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਉਹਦਾ ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਸਮ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਸਮ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਜੋ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਆਰ ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ। ਆਰ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ। ਥੀਟਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕਾਸ, ਆਰ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਐਕਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਬਲ ਐਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਖਾਸ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 5 ਕੰਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਟ ਜਾਂ 7 ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 0 ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 30, ਜੇ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਈਏ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੌਸ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਗਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
जे मैं उरे θ1 पा लवां, ये एंगल θ1 लै रहा हूँ मैं, जे आ एंगल लै रहा हूँ ਇਹਦੇ ਨਾਲ एंगल बनता θ1, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ एंगल बनता होगा जी ये कॉस वाला पार्ट होगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ एफ कॉस θ1 भी कह सकते हैं। ये मर्जी मतलब अपनी मर्जी होगी, जे तो आप एंगल आ देख रहे हैं, इन्ना एंगल नहीं बनता, थीटा एंगल देख रहे हैं, मान लो आप एंगल फोर्स का इन्होंने दोनों एंगल नहीं पा रहा, एंगल बाहरला एंगल देख रहे हैं आप, तो साइन वाला पार्ट होगा। जे एंगल देख रहे हैं आप वाला एंगल देख रहे हैं, मान लो जिन्हें एंगल बनता हो फिर कॉस वाला पार्ट होगा। ये कोई रट्टा नहीं है कि एक कॉस आऊगा पक्का, एक साइन आऊगा पक्का, मतलब ये काम समझ के करोगे फिर सौखा रहूगा, नहीं तो फिर उलझी जाओगे। हुण मान लो यही आ गया, ये दो रिजॉल्ट पार्ट कर लिया आप, रिजॉल्ट पार्ट कर ले। हुण तो बच्चे दिमाग च रट्टा होंदा कि एक रिजॉल्ट पार्ट पक्का कॉस वाला होंदा, एक पक्का साइन वाला होंदा, नहीं ये कंपलसन नहीं है। ये एंगल पर डिपेंड करता, मान लो कि एंगल थीटा हो गया, आ एंगल थीटा हो गया, आ एंगल θ1 मान लो एंगल θ2, दो एंगल ने मान लो सम 90 इन्हों का रिजॉल्ट पार्ट की गल कर रहे हैं। जे तो एंगल आ देख रहे हैं फिर ये फोर्स, ये रिजॉल्ट पार्ट का एंगल बनता फोर्स ना, ਜਿਹੜੇ रिजॉल्ट पार्ट का एंगल बनता होवे ये कॉस वाला होंदा, समझियो ध्यान नाल। जे एंगल आ देख रहे हैं आप कटना रिजॉल्ट पार्ट ए वाला, हुण एंगल जिहड़ा हैगा जिहड़ा आपां रिजॉल्ट पार्ट कटना ਉਹਦੇ ਨਾਲ एंगल नहीं बन रहा, एंगल दूजे ਨਾਲ बन रहा। एंगल आ देखने को कह रहा मैं, आ एंगल देखना, जे आप आ एंगल देखांगे तो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ रिजॉल्ट पार्ट कट रहे हैं ਉਹਦਾ एंगल नहीं बनता ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, जे एंगल नहीं बन रहा हैगा तो ये फिर साइन वाला पार्ट होगा, साइन थीटा। हुण ए वाला की होगा फिर अपने को उपर वाला, जे θ1 लाओगे ये रिजॉल्ट पार्ट ना एंगल बनता, ਜਿਹੜੇ रिजॉल्ट पार्ट ना एंगल बनता होवे आ होगा जी कॉस वाला। हुण रिजॉल्ट पार्ट कटना यही है, एंगल दूजे वाला ले रहे हैं आप, फिर ये साइन वाला पार्ट होगा। मतलब ये कोई कंपलसन नहीं है कि एक कॉस वाला एक साइन वाला होगा, दोने कॉस कॉस भी लै सकते हैं, ये मर्जी है, जो समझ के करोगे फिर ठीक रहूगा। अदरवाइज बच्चे ही रट्टा मारते हैं मोस्टली कि एक साइन कॉस, जिमें ये करांगे सारा कॉस च कटते हैं बच्चे, दूजा सारा साइन च कटते हैं, तो देखांगे आप लग जाए पता। समझ के तो चलू काम जे प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम पूरे चैप्टर खत्म हो जाना, ये प्रॉब्लम तो रहूगी हमेशा। तो ये वाला कंसैप्ट अजिहा कंसैप्ट है रिजॉल्ट पार्ट वाला, ये पूरी बुक च यूज़ होगा, अगे हरेक चैप्टर ऐ कह लो कि थोड़ा थोड़ा यूज़ होगा कंसैप्ट। तो देखो इस तो बाद ये फोर्स लई आप 7, ये कॉस 0 हो गया, 0 एंगल ले रहे हैं आप, ये एक्स एक्स ने 0 एंगल बना रहा है, जो एक्स एक्स ने एंगल बना रहा है 0 तो रिजॉल्ट पार्ट कहना कॉस 0 आ गया। हुण आ देखो पहला कोशिश ये कर लिया करो पूरे टेल ले आया करो फोर्स की, जितों आप रिजॉल्ट पार्ट कट रहे हैं ना उत्थे फोर्स की टेल ले आया करो, टेल ਇਹਦਾ ਇਹ फोर्स हैड आ रहा है ना, इन्हें कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इन्हें पिछे ले जाओ। सारे वैक्टर फ्री वैक्टर ने जी, ये कितने भी चक के लैके जा सकते हैं, चक के आप इत्थे लिया। हुण एक आ हो गया, एक आ हो गया, ये पहला भी किया सी, ये दो कंपोनेंट करने ने, एक डायरैक्शन इधर होगी एक डायरैक्शन इधर होगी, फोर्सिस दे विच ही रिजल्टेंट हुंदा, ये लास्ट लेक्चर च कराया सी आपां ने। हुण जिहड़ी गल उपर मैं जोर ला रहा हैगा वो देखो, हुण ये एंगल देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होणगे 30-30, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंदे की ने, दो लाइनां दे विच जिहड़े दो लाइनां कट कर रही ने, जिहड़े आमने सामने होणगे नूं कहांगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल इहदे बराबर होगा, ये वाला एंगल इहदे बराबर होगा। एक तो आ लाइन इक्को आ पिछे प्रोड्यूस की है, आ भी लाइन इक्को आ, ये पिछे लैके आए आप, दो लाइनां कट कर रही हैं तो ये एंगल दोनों की होणगे आपस में बराबर होणगे। जे 30 है देखो कन्फ्यूज़ ना होइए 60 है। हुण आ लभना अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये अलॉन्ग लभना अपने, जे एंगल आ लॉन्ग 30 फिर ये कॉस वाला पार्ट हो कितना बनूगा 80 cos 30, जे एंगल आ लॉन्ग फिर ये साइन वाला पार्ट होगा, ये बनूगा 18 sin 60। बस यही गल समझ के कर लियो, तो बिना प्रैक्टिस तो यह गल समझ नहीं आनी हैगी। तो 7 cos अगला आ गया अपने को 18, मैं cos ही ले रहा cos 30
डायरैक्शन देख लेनी होंदी है। ये डायरैक्शन ऑपोजिट आ रही है, एक्स एक्सिस दूजे अगे नूं मन्नी आपां, ये डायरैक्शन पिछे नूं आ रही है, तो साइन की आऊगा इस केस नैगेटिव। ये दो हो गई। हुण आ फोर्स जितों आपां लभ रहे हैं उहदी टेल चाहिए आपां नूं। ये टेल तो हैगी है, इहदा रिजल्ट पार्ट लभना आपां अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एंगल देखो कितना बनूगा एक्स एक्सिस नाल 60, तो रिजल्ट पार्ट की होगा जिन्ना एंगल बनता होवे वो रिजल्ट पार्ट कॉस वाला होगा। 50 कॉस 5 कॉस 60 प्लस क्यों पाया, बिकॉज रिजल्ट पार्ट डायरैक्शन जी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आऊगी। हुण आ 9 देखिए आपां 9, ਇਹਦਾ रिजल्ट पार्ट इधर लेना अपने। एंगल कितना बनूगा ओवरऑल जी 30 30 30 90, तो यह बन गया 9 cos 90। जिन्ना आप एंगल देख रहे हो वो कॉस वाला पार्ट होंगे। ये हो गया जी। हुण आ देखो 19, हुण एंगल जो मैं देख लो, जे एंगल इधर देखोगे ये कितना होगा एंगल, ये एंगल होगा अपना 60। जो एंगल नहीं कढ़ते आप, ये एंगल आप नहीं कढ़ते। एक आह दोनों पासे ये गल ध्यान जो दोनों रिजल्ट पार्ट कट रहे हैं, ये रिजल्ट पार्ट कट रहे हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर चाहिए आपको। इन्हां च एंगल 90 चाहिए आपको। हुण देखो एंगल पता आपको 30 ना, आह रिजल्ट पार्ट जिहड़ा हैगा वो आह वाला कटना अपने। जिन्ना एंगल बनता वो नहीं कटना, दूजा कटना, फिर साइन वाला पार्ट होगा। ये बनेगा 19 साइन 30। बस ये काम समझ के करना। डायरैक्शन की आऊगी जी, इसका रिजल्ट पार्ट आप इधर लभ रहे हैं, इदा घुमा लो इनू जिधर एंगल देखिए आपने इधर पासे कटिया, डायरैक्शन इधर होगी, एवं डायरैक्शन होगी जी। ये डायरैक्शन बाहर में अजे घुमावांगे, डायरैक्शन बाहर में होएगी। जो डायरैक्शन बाहर में होएगी तो ऑपोजिट आ गई एक्स एक्सिस के, फिर की बन जाएगा ये नैगेटिव। बस आही चीज़ है पूरे चैप्टर के विच। एंगल देखने आ, बस फोर्सिस के रिजल्ट पार्ट देखने, ये सॉल्व कर लवांगे। एवं आप दूजा कढ़ लवांगे। फिर स्केयरिंग एडिंग की सी आपां, चाहे ध्यान च होए, फिर आप चो करते हैं कंप्लीट आपां। बाकी ये मैं जान के मिक्स किया, और कॉस पाता और साइन। बच्चे की करते रट्टा मारते हैं जी, रट्टा किवें आपां करांगे अगे। पहले सारे कॉस च बना देंगे ने, वाई वाला सारा साइन 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 कर देंगे। इदा नहीं करना है, मैं तो ही मिक्स किया थोड़ा ये समझाने वास्ते। और कॉस भी लै सकते हैं, कॉस 60 आऊगा। पर जो देखो करिए आप, ये आऊगा 7 कॉस 0 1 हो गया, 18 कॉस 30 √3/2 हो गया, 5 कॉस 60 हाफ हो गया, कॉस 90 0 होंदा जी, साइन 90 हाफ, साइन 30 हाफ। सब ये कर लो सॉल्व, सारा कितना बनेगा 5 14 15, ये कट जाएगा सारा ना। ये आ गया अपना -9/√3। ये आ गया अपने को x इक्वल्स टू r cos थीटा इक्वल्स टू -9/√3। ये नंबरिंग 1 पा के आप रख लिया। यही अपना पहला पार्ट आ गया जी। हुण आप रिजल्ट पार्ट कढ़ने ने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया, हुण कढ़ांगे सारे आप अलॉन्ग वाई एक्सिस। वैसे थोड़ा इदा ही कहूँगा, तो डायग्राम तो कॉपी बनाई होगी नाल। पहला ये वीडियो पॉज करके आप बना के देखो, ये वीडियो पॉज करके रोक के वीडियो पहला आप बना के देखो कि अलॉन्ग वाई एक्सिस जो रिजल्ट पार्ट है ना सही आ रहा थोड़ा। फिर जो इत्थे करांगे आप ना मैच करिए कि सही बनता। चलो कर रहे हैं आप। इनू वाई लिया सी, ये हुंदा आर साइन थीटा। साइन क्यों कह रहे हैं, हम रिजल्ट पार्ट आ लभ रहे हैं, आप एंगल दूजे नाल बन रहा है, तो यह साइन वाला पार्ट होगा जी। तो ये कितना आ गया अपने को, ਇਹਦਾ एंगल कितना बनता सीगा, जे मर्जी कर लो। ਇਹਦਾ रिजल्ट पार्ट ਇਹਦੇ लॉन्ग देखना, एंगल कितना बनता है 90। ये बन गया 7 cos 90। कॉस क्यों किया, बिकॉज ਇਹਦਾ रिजल्ट पार्ट ਇਹਦੇ लॉन्ग कटना ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ लॉन्ग ਜਿਹਦੇ अलॉन्ग कटना हैगा ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एंगल बनता 90।
तो जिन्ना एंगल बनता होवे वो कॉस वाला पार्ट होंदा। इहदा रिजल्ट पार्ट एक्स एक्सिस लॉन्ग लभना होवे एंगल थीटा बनता कॉस वाला पार्ट होगा। इहदा रिजल्ट पार्ट आपां वाई एक्सिस लॉन्ग कढ़ना एंगल वाई एक्सिस नाल देख रहे हैं तो कॉस वाला पार्ट होगा। साइन भी लै सकते, साइन जीरो भी लै सकते, साइन जीरो भी लै सकते आपां। हुण 18 आ सी 18 बनया होया डायग्राम दे विच। जे तो आ लभना आपां, जे आ एंगल लाओगे फिर आ रिजल्ट पार्ट जो साइन वाला साइन का बनेगा, जे आ एंगल लाओगे फिर कॉस का बनेगा। मैं एंगल आ लै रहा, दोनों गल्लां सेम ने जी। ये आऊगा 18 कॉस 60, डायरैक्शन देख लेनी नीचे नूं आ रही है, वाई एक्सिस उपर सीगा, ये नैगेटिव होगा। ये भी हो गया जी। हुण 5 देखो, ये एंगल कितना बनता 60 सारा। जे रिजल्ट पार्ट आ लभना अपने एंगल एक्स एक्सिस का कंसीडर कर रहे हैं 60, फिर ए वाला पार्ट की होगा साइन वाला। जे आप एंगल आ लवांगे फिर ए वाला पार्ट की होगा कॉस वाला। मैं एंगल आ लै रहा जी 60, ए वाला पार्ट होगा फिर साइन वाला। 5 साइन 60, डायरैक्शन की होगी जी इधरले पासे होगी जी सेम होगी, इस करके की आऊगा ये पॉजिटिव। 9 देखो, 9 दो तरीके ने। हूँ 9 का वाई एक्स ना कितना एंगल बनता है जी पिछे किया 7 का एक्स एक्स ना कितना एंगल बनता सी 0, उवें 9 का वाई एक्स एंगल कितना बनेगा जी 0 बनेगा, कॉस 0 कह सकते हैं। ਜਾਂ मैं होर तरीके कर रहा, ये 9 का एक्स एक्स एंगल कितना बनता 90। लभना की आप दूजे वाला पार्ट लभना, रिजल्ट पार्ट लॉन्ग वाई एक्स लभना अपने। जिन्ना एंगल बनता वो नहीं फाइंड करना, आप आ नहीं फाइंड करना, दूजा फाइंड करना। तो साइन वाला होगा ये साइन 90 बन जाएगा। 9 साइन 90, डायरैक्शन की हैगी है जी सेम है, इस करके पॉजिटिव आ। 19 ये एंगल ले रहा मैं, हूँ ये लॉन्ग लभना आप रिजल्ट पार्ट। जिन्ना एंगल बनता हैगा फिर वो कितना आ जाऊगा अपना कॉस वाला पार्ट। 19 कॉस 30, जे आ एंगल लाओगे फिर साइन आ जाऊगा। देखो मिक्स जहा किया मैं जान के काम विच कॉस साइन करते, ये समझाने वास्ते कि पक्का नहीं कि सारे साइन ही होंगे इत्थे। बस ये पॉजिटिव क्यों पाया, डायरैक्शन सेम है। इनू सॉल्व कर लेने। कॉस 90 0 हो गया, कॉस 60 हाफ हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया, साइन 90 1 हो गया, कॉस 30 √3/2 हो गया। ये कट गया जी। 24 12 √3, ये अपना y = r साइन थीटा कितना आ गया 12 √3 आ गया। यह अपना 12 √3 आ गया, नंबर 2 पा लवेंगे। इस तो बाद स्केयरिंग एडिंग करनी है, उतों r निकल जाएगा, डिवाइड करना उतों थीटा निकल जाएगा। वो करन लगे आप गल सारी मुक्ति डायग्राम उपर है। डायग्राम बनानी आ गई फिर थोड़ा समझ छेती आ जाएगी। Scaling and adding 1, scaling and adding 1 and 2, ये बन गया r², साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा जी। वो देख लियो, ये बनेगा 144 × 3 81 × 3, ये बन गया 42 432 प्लस 243 5 7 6। तो आर आ गया अपना √675। ये कर लो किन्ने बन गए 5 675 में 5 से किया आप 5 1 5 5 3 15 5 5 25, फिर 5 से किया, फिर आ गया 5 10 27,
फिर 9 30 27 15√3 15√3 तो जो भी आ गया वो आंसर। फिर थीटा कटांगे आप डिवाइड करांगे, साइन उपर रखो डिवाइड 2/1 जोड़ा साइन थीटा उपर रखांगे आप ये बन गया डिवाइड किया आर साइन थीटा बटा आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 12√3 बटा -9√3 ये कट गया जी। ये आ गया -4/3 तो टैन थीटा आ गया तो -4/3 तो थीटा बन गया जी टैन इनवर्स जो भी आ गया आंसर। ये दोनों ही कटने अपने, ये दोनों ही कटने। मेन गल तो ये एंगल नहीं, जिसमें एंगल कटने आ गए रिजॉल्व पार्ट कटने आ गए फिर क्वेश्चन सारा सौखा लगेगा। बाकी थोड़ी प्रैक्टिस है, जिवें प्रैक्टिस करोगे तो उवें समझ आऊगा जी। अगे एक क्वेश्चन करवाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। वो क्वेश्चन कर रहे हैं आप इन्हें मटेरियल पहला आप तो देखो ध्यान स्टेटमेंट की है। इस क्वेश्चन थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी पुरानी। स्टेटमेंट मैं बोल रहा है, तुसी भी देख लो। 3 forces acting at a point are parallel to the sides of a triangle ABC taken in order and are proportional to cosine of opposite angle. Show that resultant is proportional to √1 minus 8 cos A cos B cos C. आगे लिखा what will be the resultant if the forces are proportional to sines of their opposite angles. तो स्टेटमेंट की हैगी वो देखनी आप ध्यान नाल। पहला यह कंसैप्ट पिछले क्वेश्चन में पहला भी क्वेश्चन में आ चुके हैं कि 3 forces मतलब लास्ट लेक्चर में ही कराया सी अपने 3 forces एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड पैरेलल टू साइड्स ट्राइंगल ABC। मतलब हुण ये पिछला जिहड़ा पढ़ रहे होंगे तो प्रॉपर लगू पता कि हो की रहा। ये ट्राइंगल आ ABC, एक पॉइंट तो फोर्स बनाई अपने फोर्स एक फोर्स जी हैगी आ 3 forces। पहली फोर्स P आ मान लो जो P1 ले लेने आप। ये फोर्स P1 जी हैगी आ वो BC के पैरेलल आ। देखो जी P2 फोर्स आ इदा बनाने आप जी P2 फोर्स हैगी आ वो AC के पैरेलल आ। जी P3 फोर्स हैगी आ ये AB के पैरेलल। पिछले नाल दा कंसैप्ट आ पिछले क्वेश्चन किया अपने वो यही एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन सीगा जिहड़ा आपां पिछले लेक्चर किया सी। उवें ही आपने कहा सीगा कि ये विच ही पा लवो डायग्राम अलग अलग लोड़ नहीं बनाउण दी। ये P1 पा लिया इत्थे P2 पा लिया जी इत्थे आपने P3 पा लिया तो विच ही पा लो। टेकन इन ऑर्डर ऑर्डर क्या सी हैड टेल ज्वाइन हुण हैड टेल ज्वाइन हैड टेल ज्वाइन। चलो ये दिता है अपन हुण किया है। इस तो बाद जी P1 फोर्स हैगी आ ये प्रपोर्शनल की हैगा ये प्रपोर्शनैलिटी साइन हुंदा ये प्रपोर्शनल कहने अपन अल्फा पाने अल्फा वांगू पाने आप।
P1 ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਪੋजिट एंगल ਦਾ ਕੋਸਾਈਨ cos A ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕੋਸਾਈਨ ऑफ ਆਪੋजिट एंगल, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ एंगल ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋजिट ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ cos ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ P2 ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ cos B, ਜਿਹੜਾ P3 ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ cos C। ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਹਟਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ K ਇਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਵੇਂ P2 ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ cos B ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ K cos C ਲੈ ਲਿਆ। तो कोई कन्फ्यूज़ होने की लोड़ नहीं है कि सारा दिता है, मान लो आपने दिता है सारा कुछ। हुण की करना आप रिजल्टेंट इज़ प्रपोर्शनल टू दिस, मतलब प्रूव करना आपने रिजल्टेंट कि प्रपोर्शनल होएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 cos A cos B cos C। प्रपोर्शनैलिटी साइन हटावांगे आप, मतलब आप ये शो करना ना 1 माइनस 8 cos A cos B cos C, ये चीज़ आपने शो करनी है जो बन जूगा अपने आप जी। हुण आर किवें कढ़दे हुंदे आ, पहलां पता होगा जी, पहलां एक्स कढ़ांगे आर cos थीटा, फिर वाई कढ़ांगे आर sin थीटा, फिर आप उस तो अगे सॉल्व करांगे। वो कर रहे हैं आप सॉल्व, आ प्रूफ सही चलदा रहा, इत्थों स्टार्ट किया है आपने, आ सही है सारा, इस तो अगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और रफ काम आ ये प्रूव करना आपने। हुण जे आपने रिजल्ट पार्ट की गल करनी है, पहला कंसैप्ट की है, पहला एक एक्स एक्सिस मननी है आपने, जी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस मान लो, एक वाई एक्सिस मान लो, ये अपनी मर्जी है जिदा मर्जी मन सकते, एक वाई एक्सिस मान लो। हुण की करना आपने, तिना के रिजल्ट पार्ट कढ़ांगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तिना रिजल्ट पार्ट कढ़ांगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, उत्थों सॉल्व हो जाएगा। पहला कर रहे हैं आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये सॉल्व कर रहे हैं। देखियो ध्यान नाल, इस तो बाद इत्थे आप आर पा लिया जी, ये कितना एंगल थीटा, ये की है वाई एक्सिस, तो एक्स जां आर cos थीटा कितना आ गया, एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, ये कितना आ गया अपने को P1 का एंगल कितना बनता एक्स एक्स ना 0, तो यह कितना होगा P1 cos 0। हुण देखना अगे P2, हुण ये गल देखनी है, एंगल का गिवन नहीं है जी अपन, P2 का एंगल कितना दिता है, दिता ही है ये दिता है, ये एंगल C होंगे जी, पहला बहुत बारी गल की है, ये एंगल C होगा। जे ये एंगल C होगा तो रिजल्ट पार्ट की होगा P2 cos C, P2 cos C। डायरैक्शन किधर बनेगी यदि नीचे नूं ऑपोजिट बनेगी, ऑपोजिट करके ये माइनस आ जाएगा। अगे P3 और टेल ज्वाइन कर लो, हाँ P3 बन गया। ये एंगल कितना B, आ ए है जी, आ बी आ सी है, आ एंगल बी हो गया। फिर आ एंगल कितना होगा सामने वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बी, आ बी हो गया जी। इधर रिजल्ट पार्ट की होगा, एंगल के अलॉन्ग ले रहे हैं तो कॉस वाला होगा, ये बनूगा P3 cos B। साइन नैगेटिव आऊगा, क्यों डायरैक्शन पिछे जा रही है, डायरैक्शन पिछे नूं है। हुण वैल्यू भर दें आप, P1 कितना लिया है अपने K cos A, P2 कितना जी K
के कॉस बी कॉस सी तो नाल हैगी है, P3 कितना जी के कॉस सी कॉस बी तो नाल हैगी। ये दोनों सेम चीज़ बन गई है, ये जोड़ लवांगे आप, ये अगे कॉमन काढ़ लो कॉस ए -2 कॉस बी कॉस सी, इनू यही रख लो। जो बाकी सॉल्व करांगे आप, ये एक्स आ गया जी। हुण लवांगे आप वाई, अलॉन्ग लै रहे हैं आप इस तो बाद वाई एक्सिस। तो वाई कितना आ गया अपने को आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। जो देखो जी इहदा अलॉन्ग लभना वाई एक्सिस, एंगल 90 है, तो कॉस वाला पार्ट आऊगा P1 कॉस 90, एंगल की है सी लभना कि लॉन्ग आप वाई एक्सिस लॉन्ग लभना, एंगल आ लै रहे हैं लभना आ वाला, ये साइन वाला पार्ट आ जाएगा P1 साइन सी, P2 सॉरी। डायरैक्शन की होगी ਇਹਦੀ वाई एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। P3 एंगल आ बी ਸੀਗਾ ਲੱਭਣਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾइन वाला हो जाएगा P3 साइन बी आ गया। डायरैक्शन की है ਇਹਦੀ डाउनवर्ड, ये तो उल्टी आ रही है, वाई एक्सिस उपर मन्ने आप, ये नीचे आ रही है, इस करके ये नैगेटिव। हुण वैल्यू भर दा कॉस 90 0 होंदा, लोड़ नहीं हैगी। P2 कितना अपने को P2 के कॉस बी, के कॉस बी हो गया जी, साइन सी माइनस अगे आ गया अपने को जी P3 के साइन सी सॉरी कॉस सी, P3 अपन गिवन आ के कॉस सी अगे साइन। ये जो के कॉमन काढ़ लो, ये कुछ देख के लग रहा अपन पता वो की लग रहा पता जी, ये बन गया कॉस बी साइन सी माइनस कॉस सी साइन बी। कॉस ए साइन बी, ये बन गया अपने को, इधर लिखना जी। वह लोड़ नहीं हैगी, इतनी प्यार दो, ये लोड़ नहीं हैगी। ये एक्स आ गया जी, ये वाई आ गया, बाकी स्केयरिंग एडिंग करांगे फिर सॉल्व करना आप इस तो बाद स्केयरिंग एडिंग करके, जो देखिए जो ना समझा दूगा। देयरफॉर आर स्केयर कितना होगा, नंबरिंग 1 2 पा लो, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, तो आर स्केयर बन गया जी, ये बन गया के स्केयर अगे कॉस ए -2 कॉस बी कॉस सी दा स्केयर बन गया, अगे के स्केयर कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस सी साइन बी द स्केयर। थोड़ी गलती होगी तो साइन सी होना सी। सो ये तो काम जोड़ा सी उरे तक ये काम अपना BSc वाला सी। हुण अगे सॉल्व करके बनाना की अपने आर अंडर ऑफ 1 - 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी नाल के सीगा,
ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, +1 ਦੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ। बाकी थोड़ा अपना मैंटल लैवल है क्वेश्चन किमें सॉल्व कर सकते हैं। हम +1 ट्रिग्नोमैट्री ला रहे हैं और ट्रिग्नोमैट्री ला के फिर आप सॉल्व करते हैं किमें सॉल्व होगा। देखो इनू आप लिख लिया के cos A आ, तिने एंगल का सम जोड़ा है अपने को A + B + C ये 180 डिग्री है। ट्रायंगल के तिने एंगल सम कितना होंदा 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाऊगी इतों 180 - B + C उधर लै गए और वैल्यू भरी अपने के स्केयर तो बाहर ही कढ़ लिया। cos 180 डिग्री - B + C देखी जाओ। बाकी सॉल्व भी कर रहे हैं आप 2 cos B cos C ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ पहले का स्केयर प्लस अगे cos B sin C माइनस cos C sin B ਇਹਦਾ स्केयर। ये दोनों के विचों आप के स्केयर बाहर कढ़ लिया। बस ये सॉल्व करना सारा। cos 180 - थीटा कितना होंदा जी, दूजा क्वाड्रेंट दूजे पहला कितना दूजे क्वाड्रेंट cos नैगेटिव होंदा जी। ये बनेगा -cos B + C -2 cos B cos C इसका स्केयर आ गया प्लस cos B sin C -cos C sin B इसका स्केयर आ गया। इस तो बाद cos A + B का फॉर्मूला होंदा जी, ये होंदा जी cos A cos B माइनस sin A sin B ये फॉर्मूला होंदा जी ਇਹਦਾ। तो बाहर माइनस आ ए साइन चेंज हो जाएंगे -2 cos B cos C ये आ जाएगा cos B sin C cos C sin B। तो बाकी सॉल्व करते हैं आप इस तो बाद जो भी आएगा देख लाँगे। ये बन गया अपने को सारा, ये रब कर लेंगे। ये दो टर्मां जिहड़ी हैगियां वो आपस सबट्रैक्ट हो जाएगियां। ये आ जाएगा के स्केयर sin B sin C माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स cos B cos C इसका होल स्केयर आ गया प्लस cos B sin C माइनस cos C sin B का स्केयर आ जाएगा। ये स्केयर खोल लेने आप ए साइन स्केयर बी साइन स्केयर सी ये सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं आप प्लस 9 कॉस स्केयर बी कॉस स्केयर सी
-6 sin B sin C cos B cos C। अगे आ गया इस तो बाद आ स्केयर खोलिया अपने cos स्केयर B sin स्केयर C प्लस cos स्केयर C sin स्केयर B माइनस 2 sin B sin C cos B cos। ये जान के इदा पाया जी कि दोनों एको जे हो टर्म आई ने sin B sin C cos B cos C। बस सॉल्व भी कर रहे हैं, छोटा जहा सिंपल ही देख लो इत्थे पहुँचना, बस ये स्टैप ध्यान रखना चौथा हो जाएगा सॉल्व। देखते हैं आप के स्केयर ये दोनों जोड़े है ने कुछ कॉमन निकलता sin स्केयर C बाहर निकलिया अंदर sin स्केयर B प्लस cos स्केयर B ये 1 होंदा सीधा पा लिया अपने। हुण आ देखियो ये तो जुड़ जाएंगे आपस ए टाइम्स बन जाएगा। आपने जिमें यदी पेयरिंग की है ना कि ये 1 बनया है उमें यदी पेयरिंग करनी है आप आपस। फिर की करते हैं आप ये दो हिस्से कर ले जी किहड़े किहड़े, एक तो cos स्केयर B cos स्केयर C अलग कर लिया, एक 8 टाइम cos स्केयर B cos स्केयर C आप अलग कर लिया। ये क्यों किया? फिर इन्हों दोनों पेयरिंग हो के ये वांगू cos स्केयर C बाहर निकल जाए, फिर अंदर 1 बन जाएगा। जो बाकी लग जाएगा पता किमें ये जुड़ गया आपस। ये कितना हो गया -8 sin B sin C cos B cos C। इस तो बाद आ टर्म रहेगी ये लिख लवेंगे आप cos स्केयर C sin स्केयर B। जो बाकी का सॉल्व भी किया चैक कर लिया। उमें इन्हों दोनों के विचों cos स्केयर C कॉमन निकल गया, cos स्केयर B प्लस sin स्केयर B कितना हो गया 1। ये sin स्केयर C सीगा, ये चो cos स्केयर C कॉमन निकलिया ये 1 हो गया अंदर। इन्होंने दोनों भी कुछ कॉमन निकलता जी, गौर ना देखो। एक तो 8 कॉमन निकलता, होर एक cos B कॉमन निकलता, एक cos C कॉमन निकलता। इन्होंने दोनों विचों गल कर रहे हैं आप। ये कॉमन कढ़े आपने पिछे की बचूगा cos B cos C। ये चो कॉमन कढ़े 8 भी निकल गया, cos B cos C भी निकल गया। ये पिछे बच गया sin B माइनस पा के sin B sin C। इतने ब्रैकेट बंद। बाकी सॉल्व भी करना ट्रिग्नोमेट्री के मतलब +1 का काम हो रहा सारा। इस सॉल्व करके आप ही आंसर बन जाऊगा जी। हुण ये दोनों इकट्ठे कर लो, ये 1 हो गया, ये आ गया +8 cos B cos C। ये देखो ध्यान नाल cos A cos B माइनस sin A sin B। ये cos A प्लस B का फॉर्मूला होंदा, मतलब cos B प्लस C का फॉर्मूला बन गया। 1 + 8 cos B cos C। B प्लस C कढ़िया सी अपना क्योंकि A प्लस B प्लस C कितना सीगा जी 180 डिग्री, तो B प्लस C कितना होगा 180 डिग्री माइनस A। तो ये बन गया cos 180 डिग्री माइनस A। ये किहदी वैल्यू कढ़ी है अपने, ये R स्केयर सीगा जी। तो R स्केयर आ गया अपना K स्केयर 1 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होंदा, माइनस इत्थे माइनस आ जाएगा। तो cos A आप अगे पा रहे हैं 8 cos A cos B cos C ते R
ये आ जाएगा के 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी का अंडर रूट। ये अपना फस्ट पार्ट होया जी। हजे फस्ट पार्ट का अपना आंसर आ गया। सैकेंड पार्ट की कहा सी उन्होंने स्टेटमेंट तुसीं देख लिओ। ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ P1 P2 ਅਤੇ P3 A B C ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸੀਗੀਆਂ ਕੌਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ P1 K ਸਾਈਨ A ਹੋਵੇ, P2 ਹੋਵੇ K ਸਾਈਨ B, P3 ਹੋਵੇ K ਸਾਈਨ C, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਉਵੇਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ P1 P2 P3 ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ R cos θ, ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਸੀ P1 cos 0 R ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ P2 ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ P2 cos B ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ P3 cos C। ਉਵੇਂ ਆ ਸੇਮ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਆ, P1 P2 P3 ਪਹਿਲਾਂ cos 'ਚ ਭਰੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਈਨ 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ। ਜੋ P1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ ਆਪਾਂ K ਸਾਈਨ A, ਇਹ ਭਰਤੀ ਮਾਈਨਸ K साइन B cos B, P2 अगे P3 भरता अपने। इस तो बाद अगे P3 भरिया जी, K साइन C cos C। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਹੀ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। P2 ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, P1 ਆ ਗਿਆ, P2 cos B। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲਤ ਬਣਾਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਂਸਰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ A B C ਇੱਦਾਂ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ cos C ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ B ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ C ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ B ਆਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x। ਹੁਣ y ਲਿਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। y ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ P1 sin 90 cos 90 ਸੌਰੀ, ਅੱਗੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਉਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। P2 ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ sin C, ਅਤੇ P3 ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ sin B। ਇਹ 90 0 ਹੋ ਗਿਆ। P2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ K ਸਾਈਨ B ਸਾਈਨ C, ਅੱਗੇ ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ K ਸਾਈਨ C ਸਾਈਨ। ਇਹ XY ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ R ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ K ਆ, ਇਹ ਸਾਈਨ A ਆ, K ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ B cos C ਪਲੱਸ cos B ਸਾਈਨ C, ਸਾਈਨ B cos C ਪਲੱਸ cos B ਸਾਈਨ C। ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਸਾਈਨ ਆਫ B ਪਲੱਸ C, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? K ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ B ਪਲੱਸ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ 180 ਮਾਈਨਸ A। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ 180 ਮਾਈਨਸ A ਸਾਈਨ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਦੂਜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਦੂਜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਈਨ A ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ A, ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ R cos θ ਇਹ ਵੀ 0 ਆ ਗਿਆ, R sin θ ਇਹ ਵੀ 0 ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ 0 0 ਆ ਗਏ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ R ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 0।
ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੋਣ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਅਰਫੋਰ, ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।